संध्या पर ईसा मसीह के शैलो उपदेश अर्थात द सरमन ऑन द माउंट का वाचन किया जाएगा और तदुपरांत उनके जीवनी तथा उपदेश की विवेचना की जाएगी। शैलो उपदेश द सरमन ऑन द माउंट इस प्रकार है। एंड सीइंग द मल्टीट्यूड्स he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness, for there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother Reka shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there remembrance that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing. Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you,
that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offended thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. It hath been said, whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement. But I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery. Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths. But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be yea, yea, nay, nay, for whatsoever is more than these cometh of evil. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? Do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be secret, and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corner of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth that
what things ye have need of before ye ask him. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. For if ye forgive the men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily, I say unto you, they have their reward. But thou, when thou fastest, anoint thine head and wash thy face. Know them, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? In thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. क्रिसमस की इस पूर्व संध्या पर ईसा मसीह के जीवन के उपदेश की विवेचना आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम रामकृष्ण संघ में क्रिसमस की इस पूर्व संध्या का आयोजन कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी भूमिका में जाने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं वचनामृत में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ईसा मसीह को ईश्वर का अवतार कहा है। उसी संदर्भ में हम वचनामृत में कई घटनाओं को पाते हैं, जिसका विवरण एक दो घटनाओं को देकर करने जा रहा हूँ। पहली घटना का विवरण हमें प्राप्त होता है जब श्री रामकृष्ण देव अपने रसददार शंभू मलिक के साथ जदू मलिक उद्यान भवन में जाते हैं और वहाँ पर ईसा मसीह की एक छवि को देखते हैं, एक चित्र को देखते हैं। वो दक्षिणेश्वर के पास में उद्यान भवन था। जब उस चित्र को वो देखते हैं, उसकी ओर एक टकी लगाते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है उस चित्र से एक प्रकाश का आविर्भाव होता है,
एक ज्योत निकलती है जो उनके और अग्रसर होती है, उनमें प्रविष्ट करती है। और प्रविष्ट होने के बाद वो लगातार 3 दिन तक वो उसी भाव में रहते हैं। 3 दिन तक वो काली मंदिर में पाँव भी नहीं रखते हैं। और चौथे दिन वो देखते हैं कि उसी छवि से एक देदीप्यमान देह आती हैं, निकलती हैं और उनकी ओर अग्रसर होती है, जिसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है कि उस छवि से, उस चित्र से गोरे रंग का, जिसका नाक चपटा था, लंबी आंखें थी, एक ऐसी दिव्यमान आत्मा मेरी और बड़ी और मेरे शरीर में प्रविष्ट कर गई। तो यहाँ पर विवरण प्राप्त होता है। श्री रामकृष्ण देव का कहना है, वो कहते हैं कि ईश्वर अवतरित होते हैं इस धरती पर लोगों के कल्याण करने के लिए, मनुष्य को उसके उच्चतम आदर्शों में स्थापित करने के लिए। दूसरी एक घटना का विवरण हमें पता चलता है। 1908 में रामकृष्ण संघ के प्रथम महाअध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जब मद्रास में थे, तो मद्रास में जो पुराना भवन था, सिस्टर देव माता वहाँ रहती थी, मठ के दूसरे और सड़क के उस पार। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज सिस्टर देव माता को कहते हैं कि आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तुम पूजा करो। जब वो पूजा करती है तो उसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज थे, स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज थे, अन्य साधु भी थे और बहुत सारे भक्त भी थे। जब वो वहाँ जाते हैं, सिस्टर देव माता ने पूजा की, तो वहाँ पर रखी जो छवि है जिसकी पूजा की जा रही थी, उन्हें एक दर्शन प्राप्त होता। उस छवि में एक नीले रंग के लबादा पहने हुए एक दिव्य पुरुष का, और वे उनसे बात करते हैं। और यह बात वे सबको बताते हैं, मैंने ईसा मसीह को देखा नीले लबादे में, मैंने उनसे बात की। और ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई पौराणिक या स्मृति में लिखी हुई कपोल कल्पनाएं नहीं है। ये तो वो घटना है जो अभी अभी घटी है, जिनका इतिहास है और उस पर उसको रिकॉर्ड किया गया है। जो हो, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मंतव्य और हमारा दृष्टिकोण जब सुदृढ़ हो जाता है कि ईश्वर का आविर्भाव होता है जन कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, तो हमें उसमें संदेह नहीं रखना चाहिए। अगर हमें संदेह होता है तो वो संदेह कौन दूर करते हैं? ये महापुरुष या अवतार पुरुष उदाहरण दे करके अपनी अनुभूतियों से, अपनी उपलब्धियों से हमें बताते हैं कि ईसा मसीह का अवतार हुआ या नहीं हुआ, कौन से किस वर्ष हुआ, कब हुआ। ये प्रश्न, इस प्रश्न का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है कि उन्होंने जो आदर्श दिए हैं उन आदर्शों को अंगीकार करना है, क्योंकि वे लोग तो दूसरों के कल्याण के लिए आते, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं आते हैं। और उदाहरण हम पाते हैं कि उन्होंने ये बात बता ही दी कि हाँ, जिस रूप में भी ईश्वर आते उन सब रूपों में वे विद्यमान होते हैं। जब भी भगवान अवतार रहते, एक ही भगवान विभिन्न रूपों में अवतार रहते, ये भी उन्होंने बता दिया। ये घटना है 28 जुलाई 1885 की, जब वे श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय, जिन्होंने वचनामृत लिखी हैं, उनके साथ नंदलाल बसु के घर जाते और वहाँ से श्री रामकृष्ण की शिष्या थी 2 बहनें, उनके घर जाते हैं। और मास्टर महाशय उस समय श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं, एक उन दोनों बहनों को कहते हैं, एक मैरी है, एक मार्था है, और आप जीसस क्राइस्ट हो। तो फिर वो कहते हैं, हाँ, वही भगवान जो जीसस क्राइस्ट में विद्यमान थे, वही मुझ में भी विद्यमान है। तो इस तरह की जो घटना है, यह
प्रतिपादित करती है कि ईश्वर जब अवतार लेते हैं वो महाशक्तिधर होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं और लोगों के उत्थान के लिए ही आते हैं, लोगों का मार्गदर्शन के लिए आते हैं। और ये महापुरुष ही हमारे संदेहों को दूर करते हैं, ईश्वर संबंधी विचारधाराओं को दूर करते हैं, हमें भ्रमित होने से बचाते हैं। अब ये घटनाएं तो हमें बताती हैं, महापुरुषों के मुख से निश्चित ये घटनाएं हमें बताती हैं कि ईश्वर अवतार लेते हैं। लेकिन अब रामकृष्ण संगम में ये पूर्व संध्या कैसे प्रारंभ हुई? श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद श्री रामकृष्ण के 9 अंतरंग शिष्य आठपुर जाते हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से कुछ दूरी पर स्थित आठपुर नामक एक कस्बा है। जब वे वहाँ पर जाते हैं तो ये सब 9 शिष्य वहाँ पर साधन भजन कर रहे होते हैं और नरेंद्र नाथ, स्वामी विवेकानंद उस समय उनका नाम नहीं था, उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ था, वे ईसा मसीह के त्याग, वैराग्य, तपस्या, निस्वार्थता, अहम शून्यता, इन सब आदर्शों का वाचन कर रहे थे और इससे ओतप्रोत सभी लोग भाव विभोर हो उठे थे और वे सब आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें यह पता चला कि आज तो ईसा मसीह के जन्म की पूर्व संध्या है। और तब उसके बाद से कुछ दिनों बाद सभी लोगों ने ईसा मसीह के जीवन के आदर्शों से प्रेरित होकर के अपने जीवन में उन्हें अंगीकार करने का संकल्प लिया और सभी ने संन्यास ग्रहण किया। तो 1886 के प्रारंभ में ही ये संध्या का आयोजन हुआ था, जो परवर्ती काल में आज तक चली आ रही है। आज लगभग 130 से ऊपर वर्ष हो गए हैं कि रामकृष्ण संघ में पूर्व संध्या का आयोजन किया जाता है, इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब प्रश्न ये है, ये आयोजन तो प्रारंभ हो जाता है, आप सब ईसा मसीह के जन्म के बारे में बहुत बचपन से पढ़ते आए, सीखते आए हैं, कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, कितने वर्षों पहले हुआ। लेकिन आज मानव जीवन को आवश्यकता क्या है? इन सब आयोजनों का आवश्यकता है क्योंकि आज मानव सभ्यता उन्नति के पथ पर तो जा रही है। उसने सभी भौतिक सुख सुविधाएं ग्रहण कर ली है। पश्चिम में विज्ञान का विकास हुआ, अपने उस विकास के बलबूते पर उन्होंने जीवन के नए नए साधन अपनाने शुरू किए। लेकिन हम देखते हैं क्या उनके उन साधनों का उद्देश्य मानव जाति का संहार करना है? क्या उनका उद्देश्य दूसरे लोगों को पराभूत करके अधिकार जमाना है या पूरे विश्व में एकाधिपत्य जमाना है? या हम सब जानते हैं पश्चिम में इतना विज्ञान का विकास हुआ, फिर भी ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अगर इतनी तरक्की कर ली है तो इसका उद्देश्य क्या संहार करना है? उन्होंने प्रगति की, लेकिन क्या वो विज्ञान वो शिक्षा दे पाया जो मानव जाति को एक सूत्र में बांधती हो? क्या ऐसी शिक्षा दे पाई जिससे आज मानव अगर त्रस्त हो रहा है, क्या उनकी भ्रांतियों को दूर कर पाई? जिस प्रकार सागर में तरंगे, प्रबल तरंगे उठती है और फिर वो विलीन हो जाती है, एक तरंग उठती है, दूसरी तरंग उसमें विलीन हो जाती है, उसका उत्थान होता है, उसका पतन होता है। समय आता है जब हम इस जगत को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम मानवीय दृष्टिकोण से देखने के कारण हमारी सोच, हमारे कार्य मानवीय हो जाते हैं, वो भागवती कार्य नहीं होते हैं। और इस मानवीय बुद्धि में हमारे अंदर की स्वार्थता, हमारे अंदर की अहमता हमें सुपथ से ऐसे पथ की ओर ले जाती हैं जो संसार के लोगों के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व और पूरे ब्रह्मांड के लिए हानिकारक बन जाता है। तो फिर ये जो तरंगे हैं, एक बार उत्थान आता है, एक बार पतन होता है, ये तरंगे हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी आध्यात्मिक जीवन में
हमारे मानसिक जीवन में भी इसी तरह का उथल पुथल होता है, इसी तरह के विचार उठते हैं, इसी तरह के विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन ये विचार, इन विचारों के उत्थान और पतन की एक अवस्था में ऐसी अवस्था आती है जब ऐसे उदार आदर्श, ऐसे उच्च कार्य के लिए कुछ महापुरुषों का जन्म होता है। और उनका जन्म इसलिए होता है कि वे मानव जाति में उन आदर्शों को अनुप्राणित कर दे, समाज में उनको अनुप्राणित कर दे, और हर व्यक्ति के रक्त के एक एक बूंद में उस आदर्श को भर दे, जिससे कि उनका मार्ग उत्थान की ओर प्रशस्त हो जाए। लेकिन हम सबका जीवन क्या है? स्वामी जी के अनुसार अगर हम देखते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि अपने धर्म प्रचार काल के 3 वर्षों में ईसा मसीह ने एक पूर्ण युग का समावेश कर दिया। और अगर उनके उपदेशों को ठीक ठीक तरीके से लिपिबद्ध किया जाता तो संपूर्ण विश्व उसमें व्याप्त हो जाता। लेकिन उनका आविर्भाव कब हुआ? उनका आविर्भाव उस समय हुआ जब जिस जाति में वे उत्पन्न हुए, जिस जाति में उनका आविर्भाव हुआ, उस जाति के इतिहास को जब हम देखते हैं, उस जाति का वह इतिहास पतनावस्था की ओर था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन उनका आविर्भाव होने का कारण क्या है? हमारे अतीत के कार्य के कारण ही हमारा जन्म हुआ है। हमने जो अतीत में जो कार्य किए उसके फल के स्वरूप हमारा वर्तमान स्वरूप है। अगर हम उनके इतिहास को जानना चाहते हैं तो हम मानव जीवन के इतिहास को तो जान ले। हमारा इतिहास क्या है? हम बड़ी बड़ी इतिहास की पुस्तकों को देखते हैं, लेकिन वास्तव में इतिहास है क्या? यह इतिहास है सामान्य मनुष्य का जीवन का। अगर इतिहास आपको जानना है, उसका इतिहास और कुछ नहीं है। वह इतिहास है उसके अतीत के भाव समूह का अर्थ है उसके अतीत के आदर्श, उसके अतीत के संस्कार, उसके अतीत की शिक्षा, उसकी पूर्व की शिक्षा जो उसने अर्जित की है, जैसा उसने अपने जीवन को गढ़ा है, जो संस्कार उसने उपार्जित किए हैं, उन संस्कारों के फलस्वरूप उसका जन्म होता है। स्वामी जी कहते हैं ये बात कि ये जो अतीत के भाव समूह है, यही अतीत में कार्य थे और वर्तमान में हमारा रूप हो जाते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्यों में क्या होता है? हमारे जो अतीत के जो आदर्श है, अतीत के जो कार्य है, हम सब में, हम क्षुद्र जनों में कुछ अल्पांश ही उसका व्यक्त होता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, शक्तिधर होते हैं, वे अतीत के साकार रूप होते हैं। वो जब इस धरती पर आते हैं तो सर्वगुण संपन्न होकर के आते हैं, सर्वशक्ति संपन्न होकर के आते हैं, और वे इस प्रकार से इस धरती पर उनका आविर्भाव होता है मानो वो मानव जाति के उत्थान के लिए मार्गदर्शक के स्तंभ हो। उनका प्रकाश, उनकी छाया शक्ति इतनी प्रबल होती है, इतनी विस्तृत होती है, और संपूर्ण विश्व को आच्छादित कर देती है। लेकिन अगर यही प्रश्न हम स्वयं से पूछे कि हम सब तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हम ईश्वर को समझ नहीं पाते, हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते हैं? स्वामी विवेकानंद एक उदाहरण देते हैं कि एक कल्पना कीजिए कि एक तो है महापुरुष जिसने अवतार लिया है और उनके चरित्र के बारे में आपने जाना, और एक है हमारा अंतर्मन। हमारे अंतर्मन की कल्पना ईश्वर के बारे में, ईश्वर के उच्च आदर्श के बारे में हमारे मन की क्या कल्पना है? अपने मन की ईश्वर के बारे में कल्पना, और दूसरा है महापुरुष के चरित्र के उच्च आदर्श। इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं, स्वामी जी कहते तो हम पाते हैं जिस ईश्वर की हमने अपने मन में कल्पना की है,
उसकी अपेक्षा उन महापुरुषों के चरित्र और उनके आदर्श हमारे ईश्वर की गई कल्पना से सर्वोत्तम है, उच्चतम है। क्यों? क्योंकि वो जो धरती पर आविर्भूत होते हैं तो उन्होंने ईश्वर की उपलब्धि की है, सत्य का साक्षात्कार किया है, और जो उन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, सर्वोत्तम आदर्श जो स्थापित किए हैं, उससे उच्च आदर्श को प्राप्त करना हमारे लिए असंभव है। इसीलिए कहते हैं कि जो महापुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ आदर्श को स्थापित किया है, उनकी आराधना, उनकी अर्चना, उनकी पूजा करने में कोई दोष नहीं है। ये महापुरुष मानवता को उसके निम्न स्तर से उच्चतर स्तर की ओर ले जाते हैं, उसकी भ्रांतियों को दूर करते हैं। हम जब तक इस जगत को मानवीय दृष्टिकोण से देखेंगे, हम जब तक अपने कार्य मानवीय दृष्टिकोण से करेंगे, हम जब तक अपनी प्रार्थनाएं, अपने सारे क्रियाकलाप मानवीय दृष्टिकोण से करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो निम्न और हीन सोच रहेंगी, जिसमें हम अपने आप की कल्पना को किसी महान पुरुष की कल्पना से अधिक समझने लग जाते हैं। लेकिन महापुरुषों के अवतरण का उद्देश्य ये नहीं है। हमने कहा कि सागर में तरंग उठती है, उत्ताल तरंग उठती है, फिर उसका पतन होता है, और इसी बीच में घटना प्रभाव पूरे विश्व में चलता है। और हमने कहा कि जो अतीत में हमने कार्य किए हैं, उसके फल के कारण ही हमारा वर्तमान स्वरूप है। तो अब हम बताना चाहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ईसा मसीह का जो उत्थान हुआ है, उनका जो आविर्भाव हुआ है, वो तो उत्थान के लिए हुआ है, लेकिन उत्थान से पहले पतन होता है। सागर की तरंग उठती है, फिर विलीन हो जाती है। एक आदर्श आता है, फिर दूसरा आदर्श, वो आदर्श विलीन हो जाता है और समाज में आदर्श को स्थापित करके चला जाता है। लेकिन इनका आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब पतना अवस्था थी, और उस समय के जो संप्रदाय थे वो अनैतिक थे, अत्याचारी थे, अधर्मी थे। लेकिन तो क्या हम उनको दोषी माने? नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि विश्व में जो भी घटनाएं होती है, जो घटनाओं का प्रभाव चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, उत्थान और पतन का ये प्रभाव, इसमें दोनों का होना आवश्यक है, पतन का होना भी और उत्थान का होना भी। जब हम देखते हैं ईसा मसीह के अवतरण को, उनका जब अवतरण होता है तो वो एक ऐसा समय था, वो ऐसा युग था उस जाति का, जिसमें विचार शिथिल हो गए थे, विचार संकुचित हो गए थे। अब हम देखते हैं पानी जब इकट्ठा होता है, जब पानी का प्रभाव रुक जाता है, तो इकट्ठा होने से क्या है, बदबू फैल जाती है, मच्छर फैल जाते हैं, विभिन्न प्रकार का गंध इकट्ठा हो जाता है। जब ये विचार हमारे स्थिर हो जाते हैं, प्रभाववान नहीं रहते हैं, संकुचित हो जाते हैं, तो हमारा मन भी मलिन हो जाता है, संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। इस मलिन और संकीर्ण मन के कारण वह काल पतना अवस्था का काल था। लेकिन उस पतना अवस्था को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये पतना अवस्था होती नहीं, हमने कहा ना किसी कार्य के कारण ही कोई कार्य क्या तभी फल हुआ है, तो ये पतना अवस्था हुई, इसी कारण उसका उत्तर क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ, उत्थान हुआ। किसका? परवर्ती काल में ईसा मसीह का उत्थान हुआ। तो एक छोर पर महापुरुष के आविर्भाव के लिए गति प्रदान की, ऐसी शक्ति को आने के लिए किसने बल दिया? किसने? इन पतना अवस्था, इन अनैतिक, इन अधर्मी, इन अनाचारियों ने। जितना उन्होंने शोषण करना चाहा, उतना ही दूसरे छोर पर आविर्भाव होता है लोगों के उत्थान के लिए ईसा मसीह का। भगवत गीता में कहा है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप समाज में देखो कोई महापुरुष यत्नशील है, प्रयत्नशील है, प्रयासरत है लोगों के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, तो सोचना
उसके द्वारा किए गए उस कार्य में, अर्थात वह मेरा ही अंश है। मैं ही अपने द्वारा उसके माध्यम से कार्य को प्रतिपादित कर रहा हूं। ईसा मसीह भी कहते हैं कि ईश्वर की उपलब्धि ईश्वर के पुत्र के माध्यम के बिना कोई नहीं कर सकता है। कोई माध्यम चाहिए जो माध्यम हमें उच्चतम अवस्था की ओर ले जाए। तो ये महापुरुष लोग जिनमें ईश्वर की सर्वव्यापी जगत की ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिंबित होती है, ये दीपक बनकर के आते हैं और हमारे अंधकार को दूर कर देते हैं। ये ईश दूत होते हैं, ये अग्रदूत होते हैं, ये अवतार होते, ये महापुरुष होते हैं जो हमारे मन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण उत्पन्न जो अज्ञान है, भ्रांति है, मैल है, जो हमारे दुष्कर्मों के कारण जो एक परत बन चुकी है, उसने हमारे ज्ञान को ढक दिया है। लेकिन ये अवतारगण आकर के हमारे इस अज्ञान को, इस मलिनता को, इस मैल को दूर कर देते हैं। लेकिन उस समय की जो प्रबल प्रजातियां थी उस यहूदी जाति में, सैड्यूसी और फैरिसी, एक फैरिसी जाति थी, संप्रदाय था जो उस समय अनुष्ठानिक क्रियाओं में विश्वास रखता था, और दूसरी थी सैड्यूसी, वो संदेहवादी थी। उन सब लोगों ने अत्याचार किया, अनाचार किया। लेकिन अब इस जाति का उत्थान कैसे हो? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक जो धर्मांध व्यक्ति होता है उसमें एक उदार मना व्यक्ति से ज़्यादा मनोबल होता है। उसके अंदर में शक्ति संचय करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति में शक्ति संचय करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार एक जाति में भी शक्ति संचय करने की क्षमता होती है। ये यहूदी जाति, इस पर रोम ने अत्याचार किया, प्रताड़ित किया, विताड़ित किया। यूनान ने अपने बौद्धिक जगत से उसको विताड़ित किया। फिर अलेक्जेंड्रिया, फारस, इन देशों ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से इनको प्रताड़ित किया। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने सहन करते हुए एक शक्ति का संचय किया, एक स्थितशील शक्ति। और शक्ति का एक नियम होता है, जो शक्ति आपने संचित की है उसे आप सुदीर्घ काल तक अपने पास बंद नहीं, कैदी बना करके नहीं रख सकते हैं। बोलते ना, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये जो शक्ति उन्होंने सहन शक्ति धारण की, इन सब अपराधों के बीच, इन अनाचारों के बीच जो शक्ति उन्होंने सहन की, यही परिवर्ती शक्ति उन्होंने संचित की। लेकिन इसका उपयोग उन्होंने विध्वंसकारी क्रियाकलापों में नहीं किया कि हम बदले की भावनाओं से युद्ध करेंगे। उन्होंने केंद्रित किया इस शक्ति को, इस संचित शक्ति को, किसमें? धर्म के प्रचार में। तो ये शक्ति है वो धर्म के प्रचार में लग गई। लेकिन जो उनके अतीत के जो भाव समूह थे, अतीत की जो जातियां थी, उन्होंने दुरुपयोग किया, उन पर अत्याचार किया। फलस्वरूप ऐसी शक्ति का उत्थान हुआ जिसमें हम देखते हैं जिस प्रकार छोटे छोटे नाले मिलकर बड़ी नदी बना देते हैं, और वो बड़ी नदी महानदी बन जाती है और सागर में चली जाती हैं, और सागर में फिर प्रबल तरंगे, उत्ताल तरंगे उठती हैं। तो इस उत्ताल तरंग के शिखर पर फिर इन सब परिस्थितियों के बीच, यहूदी जातियों के इस संघर्ष के बीच आविर्भाव होता है ईसा मसीह का। और वो जब आविर्भाव होता है तो उस आविर्भाव का उद्देश्य तो उत्थान करना ही है। और उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके अतीत, वो सब एक ऐसा आविर्भाव था जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ उच्च व्यक्ति थे, उन सब में वो आदर्श सम्मिलित थे। किस प्रकार उस समय के तत्कालीन जाति के लोगों को, समाज के लोगों को अग्रसर किया जाए उच्च जीवन की ओर। अगर हम देखते हैं ईसा मसीह के जीवन में, वो संदेश देते हैं हमें पवित्रता का, वो संदेश देते हैं हमें त्याग का, वो संदेश देते हैं हमें स्वार्थहीन होने का,
वे संदेश देते हैं हमें अहमताहीन होने का, अहम शून्य होने का। लेकिन इससे पहले स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो ईसा मसीह थे ये अवतार थे, लेकिन उन्होंने कहा वो पश्चिम उनके जब कहते हैं कि ईसा मसीह का जो चित्रण किया गया है, जिस प्रकार से उनको चित्रों में सजाया जाता है, उसके चित्रण को देख करके कहते हैं वो वेस्टर्न नहीं थे, वो ईस्टर्न थे, वो प्राच्य थे। वो कहते हैं कि उस चित्र में दिखाया गया है नीला आकाश, मेष पालक दिखाए गए हैं, सूर्य दिखाया गया है तपती धूप में, नर नारी को कुओं से जल लाते हुए दिखाया गया है। ये एक चित्रण प्रदर्शित करता है इस एशिया महाद्वीप को। वो प्राच्य थे क्योंकि वो कहते हैं जो पश्चिम के लोग हैं वो राजनीति की भाषा बोलते हैं, लेकिन जो एशिया के लोग हैं, जो प्राच्य के लोग धर्म की बात करते हैं। कहते हैं पश्चिम के लोग यहां पर ऐहिक सौंदर्यता पर बल देते हैं, वो कला कौशल में अग्रणी हैं, लेकिन उनकी पिपासा, उनकी भूख इतनी ज़्यादा है कि वे दूसरों को बर्बर और असभ्य समझते हैं। वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं, और दूसरे अगर उनका कहना नहीं मानते हैं तो उनका विनाश करना चाहते हैं। लेकिन जब एशिया के क्षेत्र की बात करते हैं, प्राच्य के क्षेत्र की बात करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं हमारे दृष्टिकोण में और पश्चिम के दृष्टिकोण में अंतर ये है कि पश्चिम के लोगों की बहिर्दृष्टि है और पूर्व के लोगों की अंतर्दृष्टि है, और हमारी और उनकी अंतर्दृष्टि में इतना फर्क है कि उनकी दृष्टि संकीर्ण है, हमारी दृष्टि विस्तृत है। उन्होंने अपने आप को विस्तारित माना कि उन्होंने खोजें की हैं, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गए हैं, लेकिन वो अंगीकार करना चाहते हैं। जब किसी ने पूछा कि मान लो ईसा मसीह से एक शिष्य ने पूछा, मान लीजिए कि आपने जो अभी उपदेश दिए, पूर्णता का जो आपने उपदेश दिया, ये बहुत अच्छा उपदेश था, मैं उसका अनुसरण करूंगा, लेकिन मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता हूं। इस दृष्टांत में स्वामी जी बताना चाहते हैं कि ईसा मसीह क्या उत्तर देंगे और हम क्या उत्तर देंगे। ईसा मसीह कहते हैं कि मैंने सत्य की बात की है, और सत्य ही ईश्वर है। वो किसी की दुकान में नहीं मिलता है। मैं दुकानदार नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं सत्य को बेचने के लिए नहीं आया हूं। जो सत्य है, ईश्वर है, उसी को मैंने बात की है। जो मैंने आदर्श बोला तुम उसका अनुसरण करो, मेरी पूजा करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आज के लोग संकीर्ण विचारधाराओं से ये बात करें कि तुम भले ही आदर्शों का पालन ना करो, कोई समस्या नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं आदर्शों का पालन करने की, लेकिन तुम आदर्शों का जो उपदेश देते हो उनकी पूजा करो। मतलब संकीर्ण जो मन है वह विभाजित कर देता है उपदेशक को और उपदेश को। उनके उपदेश कल्याणकारी कार्यों के लिए है, ना कि स्वयं के उपदेशक की प्रसिद्धि के लिए। वे बार बार कहते हैं कि अगर लोगों की मुक्ति के लिए 20 लाख बार भी जन्म लेना पड़े तो भी वो जन्म लेंगे, कल्याण करके जाएंगे, त्याग करके जाएंगे दूसरों के लिए। लेकिन उनके अंदर ये कभी इच्छा उनको छू भी नहीं पाएंगी कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरा नाम करें, मेरा यश फैलाए। उनका उद्देश्य ये नहीं है। उनका उद्देश्य तो वास्तव में उस आदर्श में संपूर्ण मानव जाति को प्रतिष्ठित करना है, जो आदर्श मानव को उन्नति की ओर ले जाए, जो उसे उत्थान की ओर ले जाता है। फिर त्याग की बात करते हैं वे। जब त्याग की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने पूछा, एक शिष्य ने आकर के पूछा कि मैं तो बहुत बेचैन हूं, मुझे किस चीज का अनुसरण करना चाहिए शांति पाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं तुम में कुछ अभाव देख रहा हूं, तुम में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करो। वो कमी क्या है? जितना भी सब कुछ धनवान, जो भी संपत्ति है उसको बेच डालो, अगर तुम्हारे पास वो गरीबों को दे दो, और मेरा अनुसरण करो, मेरे उपदेशों का अनुसरण करो।
अब वही व्यक्ति जब ये बात सुनकर के जाता है घर, तो उसको बहुत कठिन लगता है वो सब त्याग करना, क्योंकि अगर आपने उच्च आदर्शों में प्रतिष्ठित होना है तो उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है, जब हम अपनी रक्षा के लिए तत्पर होंगे तो एक दिन वो हमसे ले ली जाएंगी। किसी चीज का अगर हमें त्याग नहीं करना, एक दिन वो हमें त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन जो वस्तु आप छोड़ना नहीं चाहते वो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर देंगे तो आपको वो चीज उपलब्ध हो जाएंगी। और ये बात हम सब जानते हैं, जब भोग विलास में हम रत होते हैं, सांसारिक क्रियाकलापों में हम रत होते हैं, तो हम भूल जाते इस त्याग के सिद्धांत को, इस अवधारणा को, इस ईश्वर के उपदेश को। और जब हम कहीं भूले भटके भ्रांत होकर के शांति की तलाश में, खोज में आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि ईश्वर ने तो यही उपदेश दिया है कि तुम मेरे लिए अपना जीवन नियोजित करो, तुम मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दो, तुम अपना बलिदान कर दो, आत्मविसर्जन कर दो। जब तक ये आत्मविसर्जन नहीं होता है, सर्वस्व त्याग की धारणा हमारे अंदर नहीं आती है, तब तक हमारे अंदर वो चिर शांति का निवास नहीं हो सकता है, वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं ईसा मसीह कि आत्म तत्व अगर हमें अपने को जानना है तो उसके लिए हमें जरूरत है तो एक चीज की, वह है शुद्धता, पवित्रता। वो कहते हैं शुद्ध हृदय पुरुष धन्य है, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। अब ये शुद्धता कैसे आती है? त्याग से आती है, निस्वार्थता से आती है, स्वार्थ शून्य होने से आती है, अहम शून्य होने से आती है। इस पवित्रता को पाने के लिए हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़े, उससे पवित्रता नहीं आ सकती, वो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, तर्क वितर्कों से भी नहीं हो सकता है। ये सब पुस्तकों में, सब स्मृतियों में, ग्रंथों में बोला गया है। अगर हमें आत्म तत्व को प्राप्त करना है तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा। और ये शुद्धता की अवस्था हम देखते हैं जब मानव उत्थान की ओर जाता है तो विभिन्न अवस्थाओं से होकर जाता है। पहले वो सोचता है एक ईश्वर है, उसकी आराधना करता है। फिर उसकी आराधना के बाद वो कल्पना करता है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, अगर बुरे काम को करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। फिर कल्पना करता है हम स्वर्ग में जाएंगे। ये उत्थान की अवस्था की जो एक अवस्था है, उससे ऊपर उठते हुए जब वो जाता है, एक बार उसे अनुभव होता है कि इससे भी एक उच्च अवस्था होती है जो आत्म अनुभूति की अवस्था होती है। जब वो यह अनुभव करता है कि ईश्वर तो सब जीवों में विद्यमान है, तो वह उसे पाने की कोशिश करता है। और जब वो उसे पाने की कोशिश करता है तो तीसरी अवस्था में पहुंचने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, और वह प्रयास होता है चित्त शुद्धि। और जब तक ये चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक हमारे अंदर आत्म प्रकाश नहीं हो सकता है। तो इस चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक है हम निस्वार्थ होकर के, निष्प्रहता से और त्याग से अपने जीवन को अध्यात्म, अपने जीवन को उच्च आदर्शों से ओतप्रोत करें। लेकिन इसके बाद और अवस्था बताते हैं कि ये अहमता शून्य अवस्था क्या होती है। त्याग का मर्म होता है निस्वार्थ होना, अहम शून्य होना। लेकिन ये अहम शून्यता क्या है? ये अहम शून्यता ऐसी अवस्था है, ऐसी उच्च आदर्श की अवस्था है जिसमें हमारा अपना स्वत्व का भाव चला जाता है, स्वत्व का भाव नष्ट हो जाता है, जिसमें हम मैं और मेरी ये कल्पना तक नहीं कर पाते हैं। ये मेरा और ये तुम्हारा, ये मैं और मेरा, ये भाव नष्ट हो जाता है। उस अवस्था में, अहम शून्यता की अवस्था में, वह अपने आप को प्रस्तुत करता है आहुति देने के लिए। वो आहुति चाहे लोक कल्याण के लिए हो, चाहे सामाजिक कल्याण के लिए हो, चाहे जीवन के उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने के लिए हो।
वह बलिदान और आत्मविसर्जन के लिए तैयार हो जाता है। ईसा मसीह हमें दूत बनकर के ये संदेश देते हैं, हमें पवित्र हृदय से जीवन का निर्वहन करना चाहिए, हमें त्याग के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, हमें निस्वार्थता, अहम शून्यता, स्वार्थहीनता से अग्रसर होना चाहिए इस जीवन में। लेकिन अगर आप कहें कि हम अगर उपदेशक का तो मनन चिंतन करें, उनकी तो प्रार्थना करें, लेकिन उनके आदर्शों का हम जीवन में पालन ही ना करें, तो फिर औचित्य क्या है इस जीवन का? वो तो भेद हो गया है, विभेद कर दिया गया है, उपदेश को उपदेशक से अलग कर दिया गया है। इस तरह की भ्रांतियां हमारे मन में ना हो कि ईश्वर आए हैं, हाँ ईश्वर की हम पूजा करते अर्चना करते हैं, सुबह शाम जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने आदर्श बताया उसको अंगीकार ही ना करें, तो उस जीवन का फल वही होगा, भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएंगी। आज हम देखते हैं कि जब दुनिया इतनी अग्रसर हो रही है हर क्षेत्र में, तो समाज में इतने सारे कलह, एक देश दूसरे देश के ऊपर वर्चस्व जमाना चाहता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पीछे छोड़ना चाहता है, हथियारों की होड़ लगी है, विकास की होड़ लगी है, लेकिन इसका उद्देश्य विकास होना नहीं, ऐसी बात नहीं, विकास होना चाहिए, लेकिन उसका चरम उद्देश्य एक समृद्ध, एक शांति स्थापित करने वाले संस्थान, करने वाले लोगों, शांति स्थापित करने के साथ साथ समन्वय स्थापित करना भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विभिन्न तरह की भ्रांतियों के कारण लोग सोचते हैं, एक संप्रदाय का व्यक्ति सोचने लग जाता है, दूसरे संप्रदाय के लोगों में भ्रांतियां हैं, लेकिन जो भी आज तक महापुरुष अवतरित हुए हैं, उन्होंने कभी इस तरह का उपदेश नहीं दिया है। वे आए, जिसका उन्होंने संदेश देना था, उन्होंने वो संदेश दिया और अपना संदेश देकर के सबको अनुप्राणित करते हुए विलीन हो गए अपने स्वरूप में। लेकिन हम अपनी कपोल कल्पनाओं, भ्रांति, क्षुद्र अहम के कारण मार्ग से भ्रष्ट होकर के उन उच्च विचारों का पालन ना करते हुए दिग्भ्रमित हो जाते हैं। महापुरुषों का आविर्भाव लोक के कल्याण के लिए होता है और वे साकार स्वरूप शक्ति संपन्न होकर के लोगों का उत्थान करते ही है। उनमें वो शक्ति होती है जिससे वो संचरित करते हैं। 2000 वर्ष पूर्व ईसा का जन्म माना जाता है, उस समय वो शक्ति अनुप्राणित की गई और आज 2000 सालों से और आगे भी कितने सालों तक उस शक्ति का विकास हो रहा है, उस शक्ति का संचरण हो रहा है। वो शक्ति रुकी नहीं है, लेकिन हमारा क्षुद्र अहम होता है, हमारे अंदर अल्प शक्ति होती है, एक अंश होता है। एक साल में, एक महीने में, कुछ वर्षों में हम जो शक्ति अर्जित करते हैं उसको खो देते हैं। लेकिन महापुरुष लोगों की शक्ति युगों युगों तक चलती है, लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे पैगंबर, अन्य पैगंबर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी अवतार इस धरती पर आए हैं वो पूजनीय हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं। हमें उनके प्रति, उनके आदर्शों के प्रति अपने को निष्ठावान बनाना होगा, ना कि ये भेद उत्पन्न करके कि हमें तो एक ही संप्रदाय का सम्मान करना, दूसरे संप्रदाय का नहीं। ये किसी भी अवतार का आज तक उद्देश्य नहीं रहा इस धरती पर। ये जो नाजरत वासी ईसा हुए हैं, इन्होंने अपने त्याग से अनेक प्रकार की दुविधाओं और बाधाओं को सहन करते हुए अपना जीवन लोगों के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। जब इनसे पूछा गया तुम कौन हो, तो इन्होंने कहा था मैं अपने पिता में विद्यमान हूं,
तुम मुझ में विद्यमान हो, मैं तुम में विद्यमान हूँ। तो कहा कि तुम सब में विद्यमान हो, तुम हो कौन? तो कहते मैं और मेरे पिता एक ही है, अभिन्न है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो कहते हैं कि आप सब उस ईश्वर की संतान हैं, आप देवतुल्य मनुष्य हैं, हम किसी से अलग नहीं हैं, हम एक ही है। लेकिन अवस्था जो हमारी निम्न अवस्था है, उस अवस्था से उच्चतर अवस्था का जाने के लिए, उस उच्च अवस्था पर जाने के लिए जो अज्ञान रूपी जो चादर हमने ओढ़ ली है, जब तक वो चादर हम हटा नहीं देते तब तक वो अज्ञान दूर नहीं हो सकता। और उस अज्ञान रूपी चादर को दूर करने के लिए ये महापुरुष लोग आविर्भूत होते हैं और ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त करते हुए हमारा उत्थान करते हैं और हमें हमारी आत्मा का प्रकाश हमें उपलब्ध कराते हैं, हमें ईश्वर की उपलब्धि कराते हैं, हमें सत्य की उपलब्धि कराते हैं, जो सभी महापुरुषों, अग्रदूतों, ईश्वर के दूतों का कर्तव्य है। और इस धरती पर अवतरित होकर के सबको युगों युगों तक प्रेरित करते रहते हैं। ईसा मसीह के इस त्यागमय जीवन से, उनके बलिदान से आज तक मानव कल्याण की जो बात, मानव कल्याण करके जो उन्होंने इस धरती पर मनुष्य को संदेश दिया है, वह संदेश यही है कि हमें अपने आदर्शों का निर्वहन करना चाहिए। वे आदर्श उच्चतर आदर्श है जो हमें हमेशा उच्च जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, हमारे उच्चतर स्तर की ओर हमें ले जाने के लिए हमेशा जो भी हमारा संघर्ष होता है उस संघर्ष में सहायता करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में उनके बताए हुए मार्गों को, उनके बताए हुए आदर्शों को अपनाना होगा और अपने जीवन को धन्य करना होगा। वे बार बार कहते हैं कि तुम उस ईश्वर के ही पुत्र हो, तुम धन्य हो, तुम्हें ईश्वर का दर्शन होगा। अतः शुद्ध हृदय पुरुष धन्य है, क्योंकि वे दर्शन पाएंगे। सबको कहते हैं हम सब शुद्ध है, हम सब पवित्र है, हम अपने आप को नीच ना समझे, हम अपने आप को हीन ना समझे। हमारे अंदर की इस दुर्बुद्धि को दूर करने के लिए ये महापुरुष हमारे लिए साक्ष्य है, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है और ये अवश्य ही हमें प्रेरित करेंगे हमारे जीवन के उच्चतर स्तर की ओर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस प्रकार हम महापुरुषों के बारे में कहते हैं कि ये अवतार होते हैं ईश्वर के और ये साकार रूप होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम में से हर व्यक्ति भी अवतार है। वो कहते हैं कैसे है? क्योंकि जो अवतार धरती पर जब आता है वो पूरे विश्व का भार वहन करता है, पूरे विश्व के भार को वहन करते हुए उनका कल्याण करता है। उसी प्रकार हर मानव इस धरती पर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। कोई ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हो। किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति, छोटे से छोटे, हीन से हीन व्यक्ति कोई ना कोई भार अवश्य निभा रहा है। वो कहते हैं, वो अपने संदेश में कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि हमारे अंदर चाहे कितना ही लांछन आ जाए, कितने ही हमने दुष्कर्म किए हो, कितना ही हमारा पतन हुआ हो, लेकिन हमारे अंदर में एक ऐसा अंश है, एक ऐसा उज्जवल अंश है जो हमें ईश्वर से संयुक्त करता है। और अगर ये अंश समाप्त हो गया तो हमारा विनाश हो जाता है। लेकिन ये जो अंश है, ये अंश हमारी पतना अवस्था से उत्थान की अवस्था तक ले जाने का एक मार्ग है। भगवत गीता में बार बार कहा है, श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, सब जानते हैं, अधर्म की वृद्धि होती है तो दुष्ट जनों का नाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूं। जिसका भी जन्म हुआ है इस धरती पर, हम सबका किसी का भी जन्म हुआ है वो अतीत के कारण हुआ है। जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हुई, इस विश्व में हुई है, वो अतीत में हुई है। और जो घटनाएं अतीत में हुई है वो घटनाएं वर्तमान में हुई है और भविष्य में वो घटनाएं होंगी। तो ये घटनाओं का एक चक्र
उत्थान और पतन का एक चक्र है। जिसका पतन हुआ है उसका अवस्थान, उसका उत्थान अवश्य ही होगा। और वो हमें वो जो पतना अवस्था हमें उत्थान की ओर ले जाने का एक शक्ति है, हमें उत्थान की ओर ले जाने की। एक विश्व में जो भी घटना प्रभाव चल रहा है उसकी यही रीति है कि जब उत्थान और पतन की ये दो तरंगे उठती है तो इन्हीं के बीच में आविर्भाव होता है उच्च आदर्शों का, उदार मना व्यक्तित्व का, महान विभूतियों का। और वो इस धरती पर आते हैं संदेश देने के लिए, सबको समृद्ध करने के लिए, सबको, सब धर्मों को, सब जातियों को समन्वित करने के लिए। आप जानते हैं आज भी जन्म, वर्ण और भाषा के आधार पर जातियों का संगठन नहीं किया जाता है। क्यों? जो जातियां हैं वो धर्म पर आधारित है। कैसे आधारित है? मुसलमान एक जाति के, हिंदू एक जाति के, बौद्ध एक जाति के। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मान लीजिए एक देश का बौद्ध जो वो दूसरे देश में रहता है, तो जिस देश का बौद्ध दूसरे देश में रहता है उस व्यक्ति की, उस बौद्ध व्यक्ति की दूसरे देश में रहने वाले बौद्ध व्यक्ति के प्रति यही धारणा है कि वह मेरा भाई है। तो ये जो धर्म है ये एक सम्मिलन की भूमि है। ये धर्म हमको एक सूत्र में बांधती है। लेकिन इस धर्म के बारे में हमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इस धर्म के बारे में स्पष्ट धारणा, कल्पना, अवधारणा होनी चाहिए। ये एक सम्मिलन की भूमि है। ये हमको परस्पर सहानुभूति की भावना देता है, एक साथ एक सूत्र में बनने की भावना देता है, ना कि हमें विधर्मी बनाता है, अधर्मी बनाता है। ये धर्म है एक सम्मिलन, एक समन्वय, एक परस्पर सहानुभूति की एक अवस्था जो पूरे संसार में शांति का संदेश देना चाहता है, जो पूरे संसार में उन्नति का संदेश देना चाहता है, सर्व जीवों का कल्याण करना चाहता है, सबका उत्थान करना चाहता है। और इन्हीं उत्थान और पतना अवस्था के बीच में जब आविर्भूत होते हैं ऐसे युग पुरुष, ऐसे इतिहास में ईश्वर के ऐसे उग्रदूत, अग्रदूत जो हमें ले जाते हैं उच्चतर अवस्था में, ईश्वर की उच्चतर और उत्तम आदर्शों की अवस्था में, जहाँ सबका सम्मिलन होता है। इस प्रकार हम ईसा मसीह के जीवन में निस्वार्थता, निस्पृहता, स्वार्थ शून्यता, अहम शून्यता और पवित्रता का संदेश पाते हैं। और इन सब संदेशों, इन सब उपदेशों का हमें चिंतन और मनन करना होगा और अपने जीवन में उन्हें अनुसरण करने का प्रयत्न करना होगा, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ इस वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।